So this is the problem. See, compute the resultant and direction of parallel forces. Parallel means what? Parallel forces means, yes, एंगल सेम. पैरेलल किसे कहते हैं? The forces or the line of action of the force is parallel. So in that case, that forces is called as the parallel forces. The distance between these two forces will be same. Okay, so let's suppose this is the vertical force and this also vertical force. So these forces are parallel force because these are spaced at a equal distance. These forces are spaced at a equal distance. तो उसे क्या कहेंगे हम? Parallel forces. So we have to just calculate the magnitude and resultant of this parallel force system. तो यहाँ पे उनका magnitude और उनका डायरेक्शन यहाँ पे डिफाइन किया है. G. So these are the three forces which are parallel to each other. So first force is downward having magnitude 60 Newton. After that, this second force, it is vertically upward and the magnitude of this force is 20 Newton. And last force, it is again downward direction and the magnitude of this force is 100 Newton. And the distance between these forces, so see, this is the distance between 60 Newton and 20 Newton is 20 mm, and 20 and 100 mm, the distance between 20 Newton and 100 mm is 30 mm. So this is the parallel force system. In that we have to just find out the magnitude and resultant of the force system. So how to find out it? यहाँ पे डायरेक्शन दिया है, मैग्नीट्यूड दिया है और जो पैरेलल फोर्स डिस्टेंस है वो भी गिवन है. सो वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट. सो हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड? इसको रिजॉल्व करने की जरूरत है क्या यहाँ पे इस फोर्स को? नहीं, क्योंकि वर्टिकल है ना, वर्टिकल डाउनवर्ड या अपवर्ड फोर्स है. जैसे कि 60 और 100 का डाउनवर्ड है और 20 का अपवर्ड है. तो जैसे ही फोर्स इंक्लाइन होता है तो उस केस में हमें उस फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ता है. रिजॉल्व करना मतलब क्या? दो कंपोनेंट में उसको स्प्लिट करना विदाउट चेंजिंग इट्स इफेक्ट. तो उसे हम कहते हैं रिजोल्यूशन. एंड द फोर्स इज कॉल्ड एज द रिजोल्यूट्स, isn't it? Yes. So first of all, I will just write here taking summation, or you can say summation of horizontal forces. Summation of H is equal to summation of horizontal force is equal to S. तो पहला जो फोर्स है 60 न्यूटन का, इट इज डाउनवर्ड, ठीक है. तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, बराबर है. और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? cos थीटा, f cos थीटा, ठीक है. तो f cos थीटा मतलब 60 cos थीटा. थीटा कितना है? 90 डिग्री विद x एक्सिस. अगर y एक्सिस के साथ लेते हैं तो 0, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा, f sin थीटा. y एक्सिस के साथ लिया तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट f sin थीटा हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं? x एक्सिस के साथ उसका जो भी एंगल है वो लेते हैं. तो x एक्सिस के साथ कितना है? 90 डिग्री. सो आई विल राइट हियर फर्स्ट फोर्स इज 60 minus 60 cos 90. After that plus 20, yes, 20 cos 90, 20 cos 90, and last one 100, it is downward, so minus 100 cos 90.
So tell me the value of horizontal forces, summation of H. Correct. Summation of H is equal to 0. Yes. So what is the answer? 0. Similarly, taking summation of vertical forces, that is summation of V is equal to, yes, minus 60 sin 90, again 20 plus 20 sin 90 minus 100 sin 90 minus, yes, minus 140. What is the unit? Yes, Newton. After that, resultant of forces, that is R is equal to under root summation of horizontal force square plus summation of vertical force square. So R is equal to summation H कितना है? 0 है. 0 square plus minus 140 square. Correct. 140 is the answer. 140 Newton. So this is the resultant. After that, direction of the resultant. So I will write here direction of the resultant force, which is equal to tan theta mod of summation of vertical force divided by summation of horizontal force. Yes, vertical कितना है? minus 140 divided by 0. Number divided by 0 infinity, 0 divided by number, तो कुछ 0 हो जाए. तो यहाँ पे थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी, which is equal to 0. So theta is equal to 0. So this is the problem which was asked for summer 19 for 4 marks. So next problem. Determine the resultant of the three forces active on a hoop as shown in figure. So this is the question which was asked for 6 marks in winter 2022. So this is the wood. So this is the x-axis, this is the y-axis. Like this, and third one is so the angle of this force is 25 degree and magnitude of this force is 80 Newton. Similarly, second force is having dimension 70 Newton and the angle between these two forces is 25. The last force having magnitude 50 Newton and the angle with the x-axis is 45.
So this is the diagram. So you can say this is the fixed support and the hook is fixed with the fixed support. So in this case again we have to find out the resultant of the forces. So what is the first step? So in this case we have to resolve the forces in horizontal and vertical direction. Yes, correct. So first of all just resolve the forces. See, force 80 Newton. So I will resolve this force. In vertical and in horizontal component. So the angle is mixed with the x-axis. So what is the horizontal component? F cos theta. F is nothing but the 80. 25. Similarly, what is the vertical component? 80 sin 25. Similarly, for this force, now the angle of the 70 Newton force is 50. Okay. Therefore, the horizontal component is 70 cos 50. 70 cos 50 and vertical component 70 sin 50. So vertical component is 70 sin 50 and horizontal component is 70 cos 50. And last one. Yes, 50 cos 45 and 50 sin 45 degree. So this is the first step. We have resolved all the inclined forces. After that, second step, yes, taking summation of horizontal forces is equal to horizontal में अभी कौन सा है 80 cos theta. 80 cos theta means 25 degree. It is in positive direction plus 70 cos 50 and plus 50 cos 45 degree. 152.85 Newton. So this is the summation of horizontal forces. Similarly, taking summation vertical forces. So V is equal to, so first force is 80 sin 25. It is upward. It is upward. है ना? It is along the positive y direction. So I will take it positive. Second one 70 plus 70 sin 50. So again it is vertical upward. So I will take it positive. And last one 50 sin 45. It is downward in negative direction. So I will take it minus. So minus 50 sin 45. 52.07. Yes. 52.07 Newton. So these are the horizontal and vertical component. After that, yes, resultant of forces. Resultant of forces is R is equal to under root summation of horizontal square plus summation of vertical square. Therefore, R is equal to, so H is 152.85
square plus 52.07 square. 161.48 47 Newton. So this is the resultant of this force system. After that, we have to also find out the direction of the resultant. So I will write here direction of resultant is tan theta is equal to summation of vertical by summation of horizontal divided, yes, summation of vertical by summation of horizontal. So 52.07 divided by 152.85. Yes, this is the tan theta. If we take theta, tan inverse of, yes, tell me the theta. 18.881 degree. So this is the direction of the resultant. अब यहाँ पे एडिशनल एक क्वेश्चन पूछा, अगर आपको इस रिजल्टेंट का लोकेशन बताना है, लोकेशन ड्रॉ करना है, सो हाउ टू लोकेट द लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स? सो सिंपली वी फाइंड द लोकेशन ऑफ द रिजल्टेंट, है ना, कि जैसे हॉरिजॉन्टल आपका पॉजिटिव है, वर्टिकल पॉजिटिव है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉजिटिव पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका एंगल भी दिया है उस फोर्स का, उस रिजल्टेंट का कितना, 18.81। इस डायग्राम में रिजल्टेंट आपको अगर शो करना है तो कैसा शो करेंगे, देखो तो यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो अपना रिजल्टेंट का एंगल कितना है, 18, मतलब इस 25 से कम ही होगा, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो लेट्स सपोज दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, जस्ट आई विल ड्रॉ हियर the location of the resultant. So this is the resultant and the angle with the x-axis is 18.81. Let's take down second problem. The forces F1, F2, F3, the forces F1, F2 and F3, all of which act at a point A of the specified in three different ways. So determine the x and y scalar component of each forces. तो यहाँ पे F1, F2 और F3 के जो फोर्सेस है वो गिवन है, और वहां पे आपको फाइंड आउट करना है x एंड y स्केलर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट मतलब क्या रहता है, उसको डायरेक्शन नहीं रहता है ना, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन।
हे डायग्राम समजली का तुम्हाला? सगळ्यात आधी डायग्राम समजून घ्या. यामध्ये 3 फोर्सेस दिलेले आहेत. पहिला फोर्सचा अँगल दिलेला आहे विथ एक्स ऍक्सिस, किती येतो 35 डिग्री. दुसऱ्या फोर्स जो आहे F2 त्याचा स्लोप दिलेला आहे 3:4, त्यानुसार त्याचा आपल्याला अँगल फाइंड आउट करायचा आहे. आणि तिसऱ्या फोर्सला काहीच दिलेलं नाही, फक्त डिस्टन्स दिलेले आहे. या बेस पॉइंट पासून तो किती अंतरावर आहे फोर्स. ठीक आहे. तर आपण सेकंड फोर्सचा जो आहे ना अँगल फाइंड आउट करू. तो कसा फाइंड आउट करायचा बघा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल let θ1 be the inclination of force F2 with x axis. तो डायग्राम में देखो फिर से. अभी क्या अपने को यहाँ पे क्या अज्यूम करना है. So this is the x axis, okay, and this is the theta1. This will be the theta1. So this is the angle of inclination of force F1 with the x axis. तो यहाँ पे देखो tan थीटा किया तो क्या मिल जाएगा आपको. tan थीटा इज नथिंग बट द अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. अपोजिट बाय एडजेसेंट साइड. तो अपोजिट कितना है यहाँ पे 3, एडजेसेंट कितना है 4. ठीक है. tan थीटा के लिए क्या है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड tan थीटा. तो यहाँ पे लेट्स सपोज ये जो ट्रायंगल बना है यहाँ पे, तो ये हम कंसीडर करते हैं θ1. इस ट्रायंगल का θ1 ये कंसीडर किया. तो अपोजिट साइड कितना है 3 डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड 3/4. तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या अभी tan θ1 इज इक्वल टू 3/4 लिख सकते हैं ना. तो हमें फाइंड आउट करना है θ1. θ1 is equal to tan inverse of 3/4 which is equal to 36.86 degree. So this is the θ1. So write down here, let θ2 be the inclination of force F3 with x axis. तो यहां पे देखो हमने क्या अज्यूम किया है θ2 इज इक्वल टू, तो फोर्स F3 यहां पे है. This is the x axis. So this angle we have assumed θ2. ठीक है. This angle we have assumed the θ2. After that see, अभी यहाँ पे ये राइट एंगल जो बनता है फोर्स का, ठीक है, यहां से ऐसा मैं ड्रॉ करता हूं इसको सिंपल. और ये जो फोर्स ऊपर से आ रहा है, सो ये फोर्स है आपका F3. तो सिंपली यहां पे क्या करना है आपको, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, यहां पे ऐसा ट्रायंगल फॉर्म किया तो ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है यहां से लेके यहां तक 0.4 मीटर. उसमें से इतना माइनस किया तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा. कितना आएगा वो 0.2 मीटर. 0.2 मीटर. और उसके बाद वर्टिकल डिस्टेंस देखो, यहां से लेके यहां तक कितना है 0.1 और यहां से फोर्स का 0.3, मतलब 0.4 मीटर. और हमने एंगल θ2 कौन सा कंसीडर किया है, दिस वन.
काढू शकतो का? So here write down tan theta 2 is equal to opposite side upon adjacent side. Opposite side कितना है? 0.4 by 0.2. 0.4 by 0.2. तो यहां से हम थीटा फाइंड आउट करना है. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.4 by 0.2. So theta is equal to 63.43. So this is the angle theta 2. लास्ट लेक्चर में हमने इसके जो थीटा 1 और थीटा 2 थे वो फाइंड आउट किए थे. ओके, और फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे आपने ड्रॉ की थी. उसके बाद हमें जो F1, F2 और F3 इन फोर्सेस को रिजॉल्व करना था, है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में. तो इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? जैसे कि हम रिजॉल्व करते हैं, इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आपको रिजॉल्व करना है. ठीक है, और उसके बाद उसका आपको लेना है समेशन. तो पहला स्टेप आप लिख सकते हैं, summation of horizontal forces, that is summation H is equal to, अभी horizontal में देखो कौन कौन से फोर्स रहेंगे. F1 का जो कंपोनेंट है, F1 कितना है, फोर्स कितना है, 600 न्यूटन का है. डायग्राम में देखिए तो उसका होरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा, 600 cos 35. उसके बाद दूसरा जो फोर्स है F2, उसका मैग्नीट्यूड है आपका 500 cos 36.87. तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, F2 cos थीटा. F2 cos कितना है आपका 500 cos थीटा कितना निकला था, 36.87. तो ये जाएगा आपका माइनस में, तो माइनस 500 cos 35.36. और तीसरा जो कंपोनेंट है पॉजिटिव में आ जाएगा 800 cos 63.43 डिग्री. So this is the summation of horizontal forces. कितना है आंसर, 449.27 न्यूटन. Similarly, summation of vertical forces, that is summation of V is equal to, तो वहां पे आपका 600 sin 35 plus 500 sin 36.87 and last one minus 800 sin 63.43. So after calculating this, we'll get the summation of vertical force minus 71.43 Newton. So this is the horizontal and vertical forces. After that, just calculate the resultant. Resultant of forces R is equal to under root, यस कितना है आपका 449.27 स्क्वायर प्लस माइनस 71.43 स्क्वायर. Just calculate it
and tell me the magnitude of resultant. Yes, 4. Yes, 454.91. So this is the resultant. बट इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है? रिजल्टेंट का मैग्नेटिक पूछा है क्या? X and Y scalar component of each forces that we have to find out. So F1 फोर्स लिया तो उसका X कंपोनेंट, X स्केलर कंपोनेंट क्या रहेगा? F cos theta. Okay, so I will write here C for force F1. What is the X component? F cos theta. F cos theta. और Y का क्या रहेगा? F sin theta. So this will be the answer for force F1. तो यहाँ पे just put कीजिए values. 600 into cos theta कितना था? 35. So answer will be 491.49 Newton. Similarly, 600 sin 35, which is equal to 344.15 Newton. So this is the scalar component of force F1. Similarly, for force F2, so what is the scalar component? F cos theta. F कितना था? 500 cos theta. थीटा कितना था? 36.87. तो ये कौन से डायरेक्शन में है? नेगेटिव में. इसकी वजह से इसको माइनस लेना पड़ेगा, which is equal to 401 Newton. And Y component is, it is vertically upward, so it will be positive. So 500 sin 36.87. So the answer is 298.6 Newton. Next component कौन डायरेक्शन में होगा? नेगेटिव डायरेक्शन. That is minus. So minus 401. Okay. Similarly, calculate the component for force F3. So X component is F3 cos theta and Y component is F3 sin theta. F3 कितना है आपका? 800 into cos 63.43, 800 sin 63.43. जो y रहेगा आपका वो माइनस में. तो x कितना आता है आपका? 357. और y कंपोनेंट 715.51. So this is the complete solution of this problem. So what is the moment of force?
Just I have already told you that moment is nothing but it is the product of force into perpendicular distance, isn't it? So see, moment of force, it is the turning effect produced by a force on the body on which it acts. तो ये क्या इंडिकेट करता है? मोमेंट क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स द टर्निंग इफेक्ट. मतलब जैसे एक बॉडी है आपकी, एक बॉडी है, उस बॉडी पे अगर आपने फोर्स लगाया, फोर्स अप्लाई किया, तो मोमेंट क्या शो करता है? इट शोज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ दैट बॉडी. जैसे कि ये पेन है, यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया, तो ये क्या इंडिकेट करेगा? इट प्रोड्यूसेस द टर्निंग इफेक्ट, है ना? इधर हो रहा है ना पेन, ऐसा है तो इसको ऐसा फोर्स लगाया या वेट दिया, तो ये क्या हो रहा है? टर्न हो रहा है. सो इट प्रोड्यूसेस द टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स. जिस बॉडी पे एक्ट हो रहा है वहां पे क्या शो करेगा? उस बॉडी में टर्निंग इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा. सो जनरली हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मोमेंट, द मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट द पॉइंट अबाउट विच द मोमेंट इज रिक्वायर्ड. मतलब किसी भी पॉइंट पे आपको मोमेंट कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट से लेके उस फोर्स तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी है, तो इसका जो प्रोडक्ट है फोर्स और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो उस प्रोडक्ट को हम कहेंगे मोमेंट ऑफ द फोर्स. जैसे कि वी कैन से द मोमेंट. तो लेट्स सपोज आई विल जस्ट ड्रॉ हियर. Let's suppose this is the fixed support. You can say this is the beam, and the length of this beam is L, and at this point I will apply the force P. So what is the moment? So moment is equal to P into L. So this is the force and this is the perpendicular distance. So what is the unit of this moment? Newton meter. See, what is the unit of force? Newton, or you can say kilonewton. Newton or kilonewton. And what is the unit for length? Meter or mm. So Newton meter or kilonewton meter. So this is the unit of moment. So see, moment is equal to P into L. So P is the force and L is the perpendicular distance, and the unit is kilonewton meter, or you can say Newton mm. Okay, Newton mm. So as we know, there are two types of moments. One is clockwise moment and second one is anti-clockwise. So in case, see, if I apply the force on this pen like this, okay, if it is rotated in clockwise direction, in that case that moment is called as a clockwise moment. अगर वो बॉडी रोटेट होता है, कैसे रोटेट होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज मोमेंट. सिमिलरली सेम पेन है, अभी फोर्स मैंने क्या किया है? नीचे से हमने अप्लाई किया है, तो इस केस में ये जो पेन है वो कैसे रोटेट होगा? एंटी क्लॉकवाइज. उस केस में उस मोमेंट को क्या कहेंगे हम? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. So these are the two types of moments, clockwise moment and anti clockwise moment. So see, if you have to define the clockwise moment, so how to define? So it is the moment of force. It is the moment of force whose effect is to turn or rotate the body about the point in clockwise direction. मतलब उस बॉडी को क्या कर रहा है? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है या टर्न कर रहा है, तो उस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो रोटेट हो रहा है, तो उस मोमेंट को हम कहेंगे क्लॉकवाइज मोमेंट. क्लॉकवाइज मोमेंट कहेंगे. सो इट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स whose effect is to turn or rotate the body in clockwise direction. It is called as the clockwise movement. Similarly, anti-clockwise movement मतलब क्या है? So it is the moment of force whose effect is to turn or rotate the body in anti-clockwise direction. तो उस बॉडी को क्या कर रहा है वो मूवमेंट? एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न या रोटेट कर रहा है. उस केस में उसको हम कहेंगे एंटी-क्लॉकवाइज
movement. So these are the two types of movement. उसके बाद these are the some application of movements. First one is position of resultant force. Second one is finding the support reaction. After that balance, lever safety value, lever, and last one is steel yard. तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है, तो एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज मूवमेंट, टाइप्स ऑफ मूवमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ मूवमेंट. ये 6 मार्क्स के लिए आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है. उसमें आपको खाली उसका डेफिनेशन, उसका डायग्राम भी निकालना है. मूवमेंट मतलब जैसे मैंने निकाला है, कैसे एक सपोर्ट निकालना है, फिक्स सपोर्ट, फोर्स अप्लाई करना है, आपको डिस्टेंस बताना है, फोर्स बताना है, और मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो भी बता सकते हैं. और इनकी जो एप्लीकेशंस है, पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मूवमेंट का यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है. अगर आपको रिजल्टेंट का एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करना है तो आपको मूवमेंट आना चाहिए. ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है. दूसरा है, अगर आपको सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने है ना, जैसे कि बीम दिया है या एक आधा मेंबर दिया है, वहां पे कुछ अननोन फोर्सेस रहते हैं, या रिएक्शन आपको कैलकुलेट करना है, तो उस केस में आपको मूवमेंट आना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फर्स्ट वन पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, फाइंडिंग द सपोर्ट रिएक्शन, अगेन बैलेंस, जैसे हमने बेल लीवर आर्म में स्प्रिंग बैलेंस लगाया था, है ना, उसका एप्लीकेशन वहां पे, तो दैट स्प्रिंग बैलेंस इज नथिंग बट दिस बैलेंस. तो वहां पे क्या है, मूवमेंट है, मूवमेंट फाइंड आउट करना है. मूवमेंट मतलब क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. जैसे कि राइट साइड का था और लेफ्ट साइड का था, ये नियर अबाउट इक्वल आना चाहिए. अपना आया था 0.2333, तो नियर अबाउट इट इज क्लोजर टू 0, इट इज क्लोजर टू 0. so that is the application, one of the application of the movement. after that लीवर सेफ्टी वैल्यू होगा, या लीवर रहेगा, या स्टील यार्ड रहते हैं. स्टील यार्ड मतलब क्या रहता है, जैसे कि आपने कौन सा वर्कशॉप वगैरह देखा होगा, वहां पे तो वहां पे बहुत सारे ऐसे गर्डर रहते हैं, हेवी वेट उठाने के लिए गर्डर्स वगैरह रहते हैं. तो उस स्टील यार्ड में, या जैसे रेलवे जंक्शन रहता है, वहां पे हेवी जो आपके रेल रहते हैं, है ना, पटरी म्हणतो आपण त्याला, रेल म्हणतात त्याला, तर ते जे काही रेल्स आहेत हेवी असतात, ते लिफ्ट करण्यासाठी तुम्हाला तिथे गर्डर्स वगैरे असतात, तर त्याचं ऍप्लिकेशन तिथे पण होतं. कशाचं, मूवमेंट. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ मूवमेंट्स. यस, इसके बाद देखिए, these are the laws related to movements. So there are I have already told you that there are two laws of movements. One is law of movement and second one is Varignon's law of movement, या you can say Varignon's principle of movement. तो उसमें सबसे पहला है आपका laws of movement. तो laws of movement क्या कहता है, देखिए, it states that if a body is in a rotational equilibrium under the action of number of forces, then the sum of clockwise movement of forces about any point is equal to the anti-clockwise movement of the force about the same point. तो ये हमने बेल क्रैंक लीवर में देखा था, है ना, जैसे कि राइट साइड के जो मूवमेंट्स थे उनका जो भी समेशन है वो इक्वल रहता है किसके साथ, राइट साइड के मूवमेंट के साथ. जैसे स्प्रिंग बैलेंस जो था उसका जो मूवमेंट था वो इक्वल था किसके साथ, जो फोर्सेस लोड्स वगैरह लगाए थे राइट साइड में, तो उसके साथ बराबर था, मतलब जीरो आना चाहिए था. लेकिन ड्यू टू सम इंस्ट्रूमेंटल एरर देयर विल बी अ फ्लक्चुएशन इन द रेडियस. Okay, that's why that moment is not exactly zero, but it is near to zero. तो इस बेस पे वो इंस्ट्रूमेंट काम करता है, लॉ ऑफ मूवमेंट. तो यहाँ पे देखो, सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट which is equal to the sum of anti-clockwise movement. So this is the law of movement. And last one, Varignon's principle of movement. एक प्रिंसिपल मूवमेंट मतलब मूवमेंट रिलेटेड ही लॉ है. तो क्या कहता है ये लॉ, देखिए, इट स्टेट दैट इफ अ नंबर ऑफ कोप्लानर फोर्सेस आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल, मतलब नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं एक पार्टिकल पे, वो फोर्सेस कैसे हैं, कोप्लानर है, एक प्लेन में सिचुएटेड है, एक प्लेन में सिचुएटेड है. देन द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स अबाउट द एनी पॉइंट
which is equal to the moment of their resultant about the same point. मतलब क्या है इसका? वैरिकोन्स थ्योरम, जैसे लॉ ऑफ मोमेंट क्या कहता है? लॉ ऑफ मोमेंट क्या कहता है? जितने भी क्लॉकवाइज मोमेंट्स हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट समेशन, वो किसके साथ बराबर है? एंटी क्लॉकवाइज, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज लॉ। ये है आपका लॉ। सिमिलरली वैरिकोन्स लॉ या वैरिकोन्स प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है? वो प्लानर फोर्सेस एक बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फोर्सेस एक पार्टिकल पे एक्ट हो रहे हैं, और वो जो फोर्सेस है वो कैसे है? एक प्लेन में सिचुएटेड, एक प्लेन में सिचुएटेड। तो उस केस में जो भी आपका सब फोर्सेस का अलजेब्रिक सम है मोमेंट्स का एक पॉइंट पे, वो इक्वल होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए किसके साथ? रिजल्टेंट के मोमेंट के साथ, रिजल्टेंट के मोमेंट के साथ इक्वल होना चाहिए। So this is the Värikons principle of motion. So see, so in this lecture we have to just discuss about the couple and characteristic of couple. Okay, so one by one we will discuss. So what is couple? A pair of two equal and unlike parallel forces, that is forces equal in magnitude, parallel to each other and acting in opposite direction. So that pair is called as the couple, or that two forces are called as the couple. So in this, यहाँ पे तीन क्राइटेरिया दिए हैं। अगर कपल को डिफाइन करना है तो आपका सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दूसरी चीज है दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दूसरा क्राइटेरिया। और तीसरा क्राइटेरिया क्या है? दीज आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जब हम डेफिनेशन लिखते हैं या डिफाइन करते हैं तो ये बेसिक चीजें है ना, उसमें आनी चाहिए। तो कपल कैसे डिफाइन किया है? A pair of two equal unlike parallel forces that is equal in magnitude, parallel to each other and acting in opposite direction. So that pair is called as the couple. Or if you want to define in other words, so how it is defined? So two parallel forces equal in magnitude but opposite in direction and separated by finite distance. यहाँ पे देखिए अभी ये F फोर्स है, इट इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली दिस फोर्स, सो आई विल से दिस वन F1 and this will F2 and these are spaced at a distance D. तो यहां पे कंडीशन क्या है? F1 the magnitude of these forces will be same. ओके, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसके बाद दे आर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस मींस व्हाट? लाइक पैरेलल फोर्सेस मतलब क्या? एक ही डायरेक्शन में एक्ट है और दे आर पैरेलल टू ईच अदर, लाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस मतलब पैरेलल तो है लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्शन कैसा है? अपोजिट डायरेक्शन। सो दीज आर इन अपोजिट डायरेक्शन, एक फोर्स अपवर्ड है और दूसरा है डाउनवर्ड, दूसरी कंडीशन। और तीसरा जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए और these are spaced at a equal distance, तो उसे हम कहते हैं couple. So this pair is called as the couple. Yeah, these forces are called as the couple. Again, if you want to see the more example of couple, so see examples of couple. First one is opening or closing a water tap. तो पहला एग्जांपल क्या है? ओपनिंग और क्लोजिंग अ वाटर टॅप। वॉटर टॅप म्हणजे काय असतं? नळ है ना, तर त्याचं जे काही ओपनिंग आहे आपण ओपन करतो पाणी येतं, ठीक आहे, ओपन करतो किंवा क्लोज करतो त्याला, है ना। एक तो टैप है, वाटर टैप है, उसको आप रोटेट करते हो। रोटेट करते हो मतलब क्या है? उस टैप पे क्या करते हैं? इक्वल फोर्स लगाते हैं और डायरेक्शन कैसा रहता है उनका? उस फोर्सेस का अपोजिट रहता है। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, ये फोर्सेस कैसे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ वाटर टैप। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है और इक्वल डिस्टेंस पे आप ये फोर्सेस लगा रहे हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कपल। सेकेंड एग्जांपल, अनस्क्रूइंग द कैप ऑफ एनी बॉटल। कौन सा भी बॉटल लीजिए, उसको अनकैप करते हैं आप,
है ना। अनकैप मतलब क्या, एक तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप उसको रोटेट करते हो, तो उस जो कैप है, वाटर बॉटल की जो कैप है, तो उस पर क्या करते हैं आप, दो फोर्सेस अप्लाई करते हैं, सेम मैग्नीट्यूड रहता है, सेम मैग्नीट्यूड रहता है, अपोजिट डायरेक्शन रहता है, और इक्वल डिस्टेंस पे आप अप्लाई करते हो। दिस इज सेकेंड एग्जांपल। अगेन, लॉकिंग और अनलॉकिंग ऑफ अ लॉक विद की। लॉक को आप लॉक या अनलॉक करते हैं, तो उस टाइम पे क्या करते हो, की पे दो फोर्सेस लगाते हो, इक्वल मैग्नीट्यूड का, अपोजिट डायरेक्शन। ये भी एक एग्जांपल है। उसके बाद फोर्सेस अप्लाइड ऑन हैंडल ऑफ अ स्क्रू। एक स्क्रू है, लेट सपोज ये ऐसा स्क्रू है, यहाँ पे आपका स्टेम है, इस स्क्रू को आपको अनस्क्रू या स्क्रू करना है, तो क्या करते हैं आप, एक साइड और दूसरे साइड पे सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाते हो, और उसको अपोजिट डायरेक्शन में आपने रोटेट किया, तो स्क्रू या अनस्क्रू हो जाएगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कपल। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कपल। ये एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा था। तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या है देखिए, द अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस कंस्टिट्यूटिंग द कपल इज 0। तो जो भी कपल है उनका अलजेब्रिक आपने सम लिया, तो वो कैसा है, वो आना चाहिए आपका 0 आना चाहिए। उनका जो सम है जिसमें कि कपल इंक्लूड है, तो उसका सम जो है वो 0 आना चाहिए। सेकेंड, द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ forces constituting couple about any point is the same and equal to the magnitude of the couple। तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, ये भी अलजेब्रिक सम है। जैसे कि आपने इक्विलिब्रियम के 3 कंडीशन देखे थे, क्या कंडीशन थे, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। तो वहां पे जो भी अलजेब्रिक सम है, वर्टिकल फोर्सेस है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस या मोमेंट है, तो उनका जो सम है, समेशन है, वो कैसा था, 0 था। तो यहाँ पे भी क्या है देखिए, द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्सेस कंस्टिट्यूटिंग द कपल अबाउट एनी पॉइंट इज द सेम एंड इक्वल टू द मोमेंट ऑफ कपल। आफ्टर दैट थर्ड, अ कपल कैन नॉट बी बैलेंस्ड बाय अ सिंगल फोर्स। अभी कपल को बैलेंस कर सकते हैं क्या, सिंगल फोर्स से नहीं। कपल मतलब क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फोर्सेस, 2 फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है, तो ये कपल से ही रिप्लेस हो जाएगा, कपल से ही रिप्लेस हो जाएगा। तो कपल कैन नॉट बी बैलेंस्ड बाय अ सिंगल फोर्स बट इट कैन बी बैलेंस्ड ओनली बाय अ कपल। तो कपल यूज करके हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, बट सिंगल फोर्स से उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे कि फोर्स सिस्टम में आप सिंगल फोर्स को रिप्रेजेंट करना है तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, 4 फोर्स दिए हैं, तो उसका जो भी इफेक्ट है वो सिंगल फोर्स से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको रिजल्टेंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन कपल के बारे में ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। कपल कैन नॉट बी बैलेंस्ड बाय अ सिंगल फोर्स बट इट कैन बी बैलेंस्ड बाय अ कपल। एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, एनी नंबर ऑफ कोप्लानर कपल कैन बी रिड्यूस्ड टू अ सिंगल कपल whose magnitude will be equal to the algebraic sum of moment of all the component of couple। तो आर्क ऑफ कपल देखिए क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस इज नोन एज द आर्म ऑफ कपल। तो आर्म ऑफ कपल मतलब क्या है, जैसे मैंने डायग्राम निकाला था कि एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन, दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और दे आर स्पेस्ड एट अ डिस्टेंस d। जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको कहेंगे आर्म ऑफ कपल। उसके बाद नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ कपल। द मोमेंट ऑफ कपल इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड आर्म ऑफ कपल। जैसे कि मोमेंट क्या था आपका, सिंपल मोमेंट या मोमेंट ऑफ फोर्स, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पे मोमेंट ऑफ कपल क्या रहेगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड आर्म ऑफ कपल, फोर्स एंड आर्म ऑफ कपल। सो दैट इज कॉल्ड एज द मोमेंट कपल और कपल मोमेंट।
So moment of couple is equal to P into A, where P is the magnitude of force and A is the arm of couple. तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि इस डायग्राम में मैं फिर से ड्रॉ करता हूं. So this is the upward force having magnitude P. This is the downward force having magnitude T. And the distance of these forces, or this perpendicular distance, I will say this is A. So in that case, this perpendicular distance is called as the arm of couple. Arm of couple. And दूसरा definition था आपका मोमेंट ऑफ कपल. मोमेंट ऑफ कपल क्या मतलब क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड आर्म ऑफ कपल. तो मोमेंट ऑफ कपल को हम ऐसा लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू दिस इज द फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल. कितना है? ये. तो यहाँ पे P मतलब क्या है? P इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड A इज द आर्म ऑफ कपल. सो दिस इज द मोमेंट ऑफ कपल and arm of couple. Write down next problem. A horizontal line PQRS is 12 meter long, where PQ is equal to QR is equal to RS is equal to 4 meter, and forces of 1000 kilonewton, 1500 kilonewton, 1000 kilonewton, and 500 kilonewton act at the P, Q, R, and S respectively with downward direction. The line of action of these forces make angle of 90 degree, 60 degree, 45 degree and 30 degree respectively with PS. PS मतलब क्या है? ये जो PQRS जो पॉइंट दिए हैं, बीम के पॉइंट है, तो PS मतलब फर्स्ट और लास्ट पॉइंट है. We have to find the magnitude and direction of and position of the resultant force. यहाँ पे magnitude find out करना है, direction find out करना है, and last one position of the resultant force. तो ये प्रॉब्लम पूछा था समर सप्लीमेंट्री 2022 फॉर 6 मार्क्स. So first of all I will draw a line whose length is 12 meter. And after that, this is the point P. P, Q, R, S. So these are the line having length 12 meter. उसके बाद P, Q, R और R, S इनका डिस्टेंस कितना दिया है? 4 मीटर. So this is 4 meter, 4 meter and 4 meter. So the total length is 12 meter. उसके बाद फोर्सेस दिए हैं उन्होंने, जिस PQRS पे ये एक्ट हो रहे हैं, एट पॉइंट PQRS वो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं. तो उसमें से सबसे पहला फोर्स है आपका 1000 न्यूटन, 1500 न्यूटन, 1000 न्यूटन और 500 न्यूटन. PQRS रिस्पेक्टिवली मतलब क्या? अगर पहला फोर्स दिया है तो P पॉइंट पे, दूसरा फोर्स है तो Q, तीसरा R, चौथा यस. रिस्पेक्टिवली मतलब अनुक्रम में म्हणतो आपण त्याला, इन ऑर्डर है ना. जैसे कि PQRS है तो 1000, 1500, 1500. तो पहला जो फोर्स है P पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, दूसरा Q, तीसरा R और चौथा यस पे. उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी दिया है. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90, 60, 45 एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली मतलब वही सीक्वेंस से आपको लेना है. तो पहला फोर्स है आपका 1000 न्यूटन और एंगल है 90 डिग्री. सो इट इज एक्ट डाउनवर्ड 1000 न्यूटन, और ये एंगल किसके साथ बना है? PS के साथ. ये जो लाइन है PS उसके साथ बना है. तो ये एंगल है आपका 90 डिग्री. दूसरा फोर्स है आपका 1500 और एंगल है 60 डिग्री. So this is the second force having magnitude 1500 Newton and the angle is 60 degree.
थर्ड फोर्स है 1000 न्यूटन, उसका एंगल है 45,000 न्यूटन और एंगल इज 45 डिग्री। और लास्ट फोर्स इज 500 न्यूटन which is act at a S point and having inclination with PS is 30 degree. तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट से आपको ये डायग्राम ड्रॉ करके इनका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पोजीशन, यहाँ पे तीसरा टर्म है पोजीशन, रिजल्टेंट का पोजीशन फाइंड आउट करना है। जैसे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में फाइंड आउट करते थे ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ऑन दैट बेसिस यू कैन लोकेट द रिजल्टेंट फोर्स इन द रिस्पेक्टिव क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे आपको वैरिग्नोस थ्योरम यूज करके उसका जो पोजीशन है वो फाइंड आउट करना है। तो पहला स्टेप सेम एज इट इज आपको परफॉर्म करना है, रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। सेकेंड, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स। तो यहां से आपको समेशन V और समेशन H मिलेगा, उसके बेसिस पे आप रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के बाद डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? tan थीटा इज इक्वल टू समेशन V बाय समेशन H, ठीक है। तो वहां से आप थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो लेट्स टेक द फर्स्ट स्टेप, रिजॉल्विंग all the forces horizontally and vertically and find the algebraic sum of horizontal forces, that is summation of H। तो पहला जो पार्ट है रिजॉल्व करने का वो पहले करते हैं। ये वर्टिकल डाउनवर्ड है, पहला फोर्स जो है वर्टिकल डाउनवर्ड है, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड केस में आ जाएगा। सेकेंड 1500 न्यूटन का है, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस में स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो सिमिलरली तीसरा फोर्स और लास्ट फोर्स, तो यहां पे एंगल अभी एक्स एक्सिस के साथ बना है, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा? एफ कॉस थीटा। एफ कितना है? 1500 कॉस 60। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहेगा? 1500 साइन 60। थर्ड फोर्स है आपका 1000 न्यूटन का, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा? 1000 कॉस 45 और वर्टिकल 1000 साइन 45। लास्ट फोर्स है 500, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा 500 कॉस 30 और वर्टिकल कंपोनेंट 500 साइन 30। ये पहला स्टेप हो गया, रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। दूसरा स्टेप है फाइंड द अलजेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। अब जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, कंपोनेंट है, तो उनका समेशन लेना है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा इसका? एफ कॉस थीटा, डाउनवर्ड है माइनस, ओके। सो माइनस 1000 cos 90 डिग्री। दूसरा है 1500, दिस वन, तो वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? नेगेटिव, तो माइनस
1500 cos 60। तीसरा फोर्स ये है आपका 1000 cos 45, ये भी निगेटिव में है, 1000 cos 45 डिग्री। और लास्ट वन माइनस 500 cos 30। So tell me the summation of horizontal force. minus 1890 90 Yes, minus 1890.12, minus 1890.12 Newton. So this is the summation of horizontal force. After that, we have to find out the summation of vertical force. अभी वर्टिकल फोर्सेस में इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहेगा, साइन, एफ साइन थीटा। ठीक है, एफ साइन थीटा मतलब माइनस 1000 साइन 90। सेकेंड कंपोनेंट है आपका 1500 साइन 60 माइनस। थर्ड है 1000 साइन 45। और लास्ट वाला है 500 साइन 30, दिस वन। Yes, minus, correct, minus 3256.14. So this is the summation of vertical forces. After that, you can find out the resultant of force. So now, magnitude of the resultant force. So R is equal to under root summation of horizontal force whole square plus summation of vertical force square. Horizontal forces का summation है आपका 1890.12 whole square plus vertical minus 3256.14 whole square. So this is the resultant. Tell me the value of magnitude of resultant. Three 3764.97. Yes. So this is the resultant. After that, direction of resultant force. That is tan theta is equal to mod of summation of V divided by mod of summation of EH, which is equal to 3256.14 divided by minus 1890.12 minus 1.5. This is the tan theta.
So theta is equal to tan inverse of मायनस नाही येणार रे, मॉड आहे तर कसं होईल ते प्लस मध्ये येणार. बरोबर, tan इनवर्स करा. येस 59.87. So this is the direction of resultant force. ठीक है, और इसके बाद थर्ड इसका जो आपको फाइंड आउट करना है पैरामीटर वो है पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स. यहां तक तो इजी है आपका, जैसे कि पहले के प्रॉब्लम में आपने सॉल्व किए थे, है ना. मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का, ये उसका डायरेक्शन. इसके बाद का स्टेप है पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स. सो राइट डाउन बोलो ना करे. तो पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ डिस्टेंस रिजल्टेंट का अज्यूम करना पड़ेगा. ठीक है, डिस्टेंस अज्यूम करना पड़ेगा. तो उसके लिए लेट एक्स बी x be the distance between P and line of action of resultant force. तो यहां पे हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट किया है. तो रिजल्टेंट को हम जो सिस्टम है, फोर्स सिस्टम है, तो उसमें लोकेट करते हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम P. सो आई विल अज्यूम थीटा कितना आया था आपका 59 ना. हाँ 59 आया. सो आई विल जस्ट draw the resultant here and the theta is 59.87 और इनका मैग्नीट्यूड कितना है रिजल्टेंट का. यस 3764.97. इसका रिजल्टेंट है 3764.97 न्यूटन. तो यहां पे इसका P से जो डिस्टेंस है वो हमने अज्यूम किया है x. तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है. ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, मतलब उसका लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता चलेगा. 4 मीटर है P और Q का डिस्टेंस है. P और Q का डिस्टेंस है. तो हमें P से लेके रिजल्टेंट कितना डिस्टेंस है ये फाइंड आउट करना है ना. उसका पोजीशन फाइंड आउट करना है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया है, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाइंड आउट किया है. ठीक है, एक लास्ट स्टेप कीजिए. नाउ टेकिंग मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स and the vertical forces. अभी यहां पे मूवमेंट लेना है. मूवमेंट मतलब क्या है? मूवमेंट इज द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस.
तो कौन से पॉइंट पे लेना है आपको? अबाउट पी, अबाउट पी आपको मूवमेंट लेना है।